وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو کہ نہیں پاتا میں اس میں جو وحی کیا گیا ہے مجھ پر کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر کہ کھائے وہ اسے بجز اس کے کہ ہو وہ مردہ یا لہو بہتا ہوا یا گوشت سور کا، کہ بے شک یہ ناپاک ہے، یا کوئی گناہ کی چیز کے نام لیا گیا ہو غیر اللہ کا اس پر، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے کہ نہ نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً تیرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اب آیت نمبر 146 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے تھے حرام کر دیا تھا ہم نے ہر ناخن والا جانور، اور گائے میں سے اور بکری میں سے حرام کر دی تھی ہم نے ان پر ان کی چربیاں، سوائے اس کے جو لگی ہوئی ہوں ان کی پیٹھوں پر یا آنتڑیوں پر، یا جو ملی ہوئی ہڈی سے، یہ سزا تھی ان کے لیے ان کی سرکشی کے سبب، اور ہم یقیناً سچ کہنے والے ہیں۔ اب کیونکہ ہوا کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کیا تو اہل کتاب نے کہا کہ یہ کوئی شریعت بدل گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم پہلے ہمارے اوپر تو یہ چیزیں حرام تھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر حرام تھی، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ حرام کی تھی، لیکن اب وہ ہمارے اوپر حلال ہیں۔ اور آیت نمبر 147 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر تکذیب کرے یہ تمہاری تو کہہ دو کہ تمہارا رب رحمت والا ہے اور بڑی وسعت والا ہے، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب ان لوگوں سے جو مجرم ہیں۔ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ شرک کرتے ہم، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ حرام ٹھہراتے ہم کوئی چیز۔ اسی طرح تکذیب کی تھی ان لوگوں نے جو تھے اس سے پہلے، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے مزہ ہمارے عذاب کا۔ کہہ دو کہ تمہارے پاس ہے کوئی علم تو لاؤ اس سے ہمارے سامنے، نہیں پیروی کرتے ہو تم مگر گمان کی، اور نہیں ہو تم مگر قیاس آرائیاں کرتے۔ اب دیکھیے کہ کتنی بڑی بات نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی، کیونکہ وہ نبی اس وقت تو وہی آ رہی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر اللہ نہ چاہتا، تم کہتے ہو کہ اللہ کی مرضی سے ہر چیز ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے پھر ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ خوش ہے تو ابھی تک کر رہے ہیں نا، تو ہم پہ کوئی عذاب بھی نہیں آ رہا، تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہو پھر ہمیں دکھا دے، کچھ عذاب لے کے آؤ، کچھ کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم نبی ہو۔ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ایسے سوال کیے جاتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ پس اللہ ہی کی حجت غالب ہے، بس اگر وہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا تمہیں سب کو۔ کہہ دو کہ لاؤ اپنے گواہوں کو جو گواہی دیں کہ اللہ نے حرام کی ہیں یہ چیزیں، پھر اگر وہ گواہی دیں تو نہ گواہی دینا تم ان کے ساتھ، اور نہ پیروی کرنا خواہشات کی ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اور ان لوگوں کی نہیں ایمان لاتے وہ آخرت پر، اور وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں دوسروں کو۔ کہہ دو کہ آؤ میں سناؤں کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر، یہ کہ نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو، مطلب یہ کہ شرک نہ کرو، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرتے رہنا، اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو مفلسی کی وجہ سے، ہم ہی رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی، اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے جو ہیں ظاہر ان میں سے اور جو پوشیدہ ہیں، اور نہ قتل کرو کسی جان کو جس کے قتل کو حرام کیا اللہ نے مگر جائز طور پر۔ یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا جس کا اللہ نے تمہیں تاکہ تم سمجھو، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریق سے جو بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، اور پورا کیا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ نہیں ذمہ دار بناتے ہم کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی جان سے اس کی طاقت کے مطابق، فار ایگزامپل کہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق کہ اللہ کی راہ میں خرچے گا نا، اور اگر ہم دیکھیں کہ اچھا وہ تو اتنے امیر ہیں، وہ تو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ رہے ہیں، ان کو تو اتنا اجر مل جائے گا، ہمیں کیسے اجر ملے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان سے اس کی وسعت کے مطابق ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، اور اگرچہ وہ ہو تمہارا رشتہ دار ہی، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ ہے وہ باتیں جس کا حکم دیا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔
اور आयत नंबर 153 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये है मेरा रास्ता सीधा, तो तुम इसी पर चलो और ना चलो दूसरे रास्तों पर, बस जुदा कर देंगे वो तुम्हें इस रास्ते से। ये वो बातें हैं हुक्म देता है जिसकी तुम्हें, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। और आयत नंबर 154, फिर अनायत की थी हमने मूसा को किताब निमत पूरी करने के लिए उस शख्स पर जो नेकूकार है, और तफसील के लिए हर चीज की, और हदायत है और रहमत है, ताकि वो अपने रब के रूबरू हाजिर होने पर ईमान रखें। और ये किताब नाजिल की है कौन सी? ये कुरान पाक। हमने इसे बरकत वाली, तो पैरवी करो इसकी और तकवा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाया कि इस किताब की पैरवी करो और इसके अहकामात मानो, क्यों? ताकि तुम पे रहम किया जाए। और आयत नंबर 156 के कहीं तुम ये ना कहो कि नाजिल की गई थी किताब दो ही ग्रोहों पर हमसे पहले, और बिलाशुबा हम थे इसके पढ़ने पढ़ाने से आजिज। या कहो कि अगर ये नाजिल की जाती हम पर किताब, तो हम जरूर हो जाते ज्यादा हदायत पाने वाले इन लोगों की निस्बत। तो अब कुरान हम पे नाजिल हो गया है ना। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कल को जब तुम क़यामत के दिन मेरे सामने हाजिर होगे, तो ये ना कहो मैंने हुज्जत तमाम कर दिया कि ये तो अहले किताब को तो किताब मिली थी, तो इसलिए उन्होंने नेक अमल किए। हमारे पास तो कोई किताब ही नहीं आई, कोई रसूल नहीं आया, तो अब आ गई है तुम्हारे पास किताब। इसके अंदर जो अहकामात हैं वो सारे के सारे ऐसे अहकामात हैं जिन पर तुम अमल कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए इस दुनिया में अमल करने के लिए बेहतर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सो यकीनन आ गई है तुम्हारे पास रोशन दलील तुम्हारे रब की तरफ से, और हदायत है और रहमत है। तो कौन होगा बढ़कर जालिम इससे जो तकजीब करे अल्लाह की आयात की और मुंह फेर ले इनसे। अनकरीब हम सजा देंगे उन लोगों को जो मुंह फेरते हैं हमारी आयात से, बदतरीन अजाब की, इसलिए कि वो मुंह फेरते हैं। अब देखिए फिर वही बात आ गई ना, अनकरीब हम सजा देंगे उन लोगों को जो मुंह फेरते हैं किनसे? हमारी आयात से। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अनकरीब हम उनको सजा देंगे जो हमारी आयात से मुंह फेरते हैं। अब वजह यह है कि हमारे पास अभी तक हमारे दिल को वो यकीन नहीं है ना। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होने का अगर यकीन हो जाए, तो क्या ये मुमकिन है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को ना माने, हम इतनी आसानी से ले लें? हर दफा अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जिन्होंने मेरी आयात का इनकार किया उनको सजा मिलेगी। और यहाँ पे अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम सजा देंगे उनको जो मुंह फेरते हैं हमारी आयात का, बदतरीन अजाब, इसलिए कि वो मुंह फेरते हैं। मुंह फेरना तो है, अगर अल्लाह की आयात का नहीं मानते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल नहीं करते, अपनी जिंदगी को उस तरह से नहीं गुजारते जैसे अल्लाह का हुक्म है, तो इनकार ही तो कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक एक लफ्ज पे अमल करने वाला बना दे, आमीन सुम आमीन। और आयत नंबर 158 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी का जवाब दे रहे हैं कि क्या ये मुंतजिर है इसके कि आए इनके पास फरिश्ते, या आए खुद तेरा रब, या आ जाए कोई निशानी तेरे रब की। जिस दिन आ जाएगा कोई निशानी तेरे रब की तरफ से, तो ना फायदा देगी किसी जान को उसका ईमान लाना, लेकिन जो ईमान लाया इससे कबल तो कमाई उसने ईमान की भलाई। कह दो तुम इंतजार करो, यकीनन मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। जब आखिरत आएगी, जब क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान दुनिया से जमीन पे नजूल करेंगे, तो क्या उसको देख के तुम ईमान लाओगे? लेकिन उस दिन तो तुम्हारा ईमान लाना तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि काफिर उस दिन कहेंगे कि या रब्बल आलमीन आज काश हम मिट्टी हो जाए, या अल्लाह एक दफा हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहती है कि आज अगर तुम्हारी जिंदगी में ये कुरान खुल गया है, आज तुम्हें इस बात की समझ आ गई है, तो आज से तौबा करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते पे चलने वाले बन जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई परवाह नहीं है कि तुम सारे के सारे नेक हो जाओ या सारे के सारे बद हो जाओ, अल्लाह को कोई उसकी परवाह नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ ये चाहते हैं कि द डे ऑफ जजमेंट जब तुम अपने अमल लेके आओगे, तो तुम अपने अमल की वजह से कहीं खसारे में ना पड़ जाओ। और अब आयत नंबर 159 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बेशक वो लोग जिन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए अपने दीन को और हो गए फिरके फिरके, नहीं है तुम्हारा उनसे कोई वास्ता, दर हकीकत उनका मामला अल्लाह के जिम्मे है, फिर वो उनको बताएगा जो कुछ वो करते हैं। देखिए ये आयत पढ़ के हमें डर नहीं लगता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फिरके फिरके बना दिया दिन को और उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। आज देखिए हमने क्या कर लिया, इस मस्जिद वाले उधर नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो वाले उधर नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये सुन्नी, ये वहाबी, ये हरी पगड़ी, किस तरह से हमने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिया।
اور اللہ सुब्हान तआला फरमाते हैं जो कोई लाएगा एक नेकी तो उसके लिए है 10 गुना उस जैसी नेकियों का, और जो कोई लाएगा एक बुराई तो नहीं सजा दी जाएगी उसे मगर उसी जैसी, और उस पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कितनी प्यारी बात है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बर्बाद हो गया वो शख्स जिसकी अकाइयां दहाइयों से बढ़ गई। किस तरह से कि देखिए, अगर एक नेकी करे तो 10 नेकियां मिलती हैं, और अगर एक गुनाह करो तो एक ही गुनाह मिलेगा ना। तो जिसकी इसके बावजूद भी दहाइयां जो हैं वो अकाइयों से बढ़ गई तो बर्बाद ही तो हो जाएगा। और आगे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि कह दो बेशक हदायत दी है मुझे मेरे रब ने सीधी राह पर, बिल्कुल सही तरीका इब्राहिम का जो एक अल्लाह ही की तरफ हो रहा था और ना था वो मुशरिकों में से। दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमें सूरजमुखी के फूल की तरह बना दे। देखिए, जहाँ पे सूरज आता है ना, सूरजमुखी का फूल उधर उधर टर्न होता रहता है। जहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म आ जाए, जिस वक्त हमें पता चल जाए, हम उसी की तरफ, हमारा किबला वही होना चाहिए। हमारी जिंदगी का, हमारी ख्वाहिशात का, हमारे जीने का, हमारी हर चीज का किबला सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ समेना बात आना वाला होना चाहिए। और देखिए, इतनी प्यारी आया है कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, कुल ए नबी कह दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। अब देखिए, इस आया को आप अपनी जिंदगी का वजीफा बना लें। इस आया को अपनी जिंदगी में तावीज पहनने का अगर शौक है ना, तो इस आया को पहनिए। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करें कि हमारी पूरी जिंदगी अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात पे चलने वाली हो जाए। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज सब अल्लाह सुब्हान तआला के लिए, और नहीं है कोई शरीक जिसका, और उसी का मुझे हुक्म दिया गया है, और मैं हूँ सबसे पहला फरमाबरदार। कह दो क्या सिवाय अल्लाह के मैं तलाश करूँ कोई और रब, जबकि वही रब है हर चीज का, और नहीं कमाता कोई शख्स मगर वो है उसी पर जो उसने कमाया, और नहीं उठाता कोई बोझ उठाने वाला बोझ दूसरे का। फिर अपने रब की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है, तो वो बताएगा तुम्हें वो सब कुछ जिनको तुम इख्तलाफ करते थे। और वही है जिसने बनाया तुम्हें खलीफा जमीन में और बुलंद किया तुम में से एक दूसरे पर दर्जात में, ताकि आजमाइश करे वो तुम्हारी इसमें जो कुछ उसने तुम्हें बख्शा है। बेशक तेरा रब बहुत जल्द सजा देने वाला है, और बेशक वो बहुत बख्शने वाला और मेहरबान भी है। अब देखिए, अल्लाह सुब्हान तआला ने अपनी दोनों चीजें, दोनों सिफात इकट्ठी हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला भी है, अल्लाह सुब्हान तआला बहुत जल्द सजा देने वाला भी है, और अल्लाह सुब्हान तआला मेहरबान भी है। और देखिए, इस आया में हमें इतना खूबसूरत मैसेज मिलता है कि इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह सुब्हान तआला ने किसी को अमीर, किसी को गरीब, कोई बीमार है, कोई सेहतमंद है, कोई गोरा है, कोई काला है, हर तरह के, हर लेवल पे लोगों को रखा है। और वो क्यों रखा है? ताकि अल्लाह सुब्हान तआला आजमाए कि इंसान उस वक्त कैसे बिहेव करता है, कोई सब्र करता है कि नहीं, कोई शुक्र करता है कि नहीं। क्योंकि सूरत मुल्क में भी अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जिंदगी और मौत को इसीलिए पैदा किया ताकि वो ये आजमाए कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें जिस आजमाइश पे भी आपने डाला है, हमें उसमें पूरा, उस पे साबित कदम रहने की तौफीक अता करना, ताकि हम अपने रब को राजी कर सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत हदीस थी कि मोमिन की तो शान ही बहुत है। जब अल्लाह सुब्हान तआला उसको मुसीबत में कोई डालता है, आजमाइश में डालता है, तो वो सब्र करके अल्लाह को राजी कर लेता है। और जब अल्लाह सुब्हान तआला उसको नेमतें अता करते हैं, तो उस वक्त वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह को राजी कर लेता है। तो वो हर सूरत में अल्लाह को राजी करने वाला बन जाता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे जो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करने वाले हैं। आमीन सुम्मा आमीन।